روح پاک خداوندا تو آ، جان جسم اور روح میں تو بس جا، آ آ روح آ، روح 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 روح، بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے، مٹ جائیں گے داغ سا، کیا ہے مٹ جائیں گے سلیم؟ پاپ کے مٹ جائیں گے پاپ کے دبے ہر دل سے، مٹ جائیں گے پاپ کے دھبے ہر دل سے، آ آ روح آ روح روح پاک روح 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 روح، تھینک یو جیسس۔ خداوند کا شکر، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ یسوع جی، میں آپ کی حمد و ثنا، آپ کے نام کی پرستش، آپ کے نام کی ستائش، اور پاک یسوع راجا جی میں آپ کا شکر کرتی ہوں۔ آپ مہربان ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، قدوس اور پاک ہیں، جلالی ہیں یسوع راجا۔ آپ سے زیادہ خداوند آپ جیسا کوئی نہیں ہے میرے بادشاہ، جلال سے بھرے صرف آپ ہیں خداوند۔ گلوری ہر طرف آپ ہی کی ہے خداوند، گلوری 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 خداوند، آپ کی گلوری، اور خداوند ساری پرستش، ساری ستائش، ساری بزرگی یسوع جی صرف آپ کی ہے، کیونکہ آپ کا نام اس لائق ہے کہ اس نام کی حمد کی جائے۔ You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus Christ. You are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be honored, Lord Jesus Christ. You are worthy, my Jesus Christ. Rabba Shanda Rabba Razinda Rabba Karashia Rabba. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your presence. کلام مقدس میں خداوند آپ نے کہا ہے، جہاں دو یا دو سے زیادہ میرے نام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میں ان کے درمیان ہوتا ہوں۔ تو خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں خداوند۔ اس ساری عبادت میں جو خداوند ہم آپ کی حضور میں پیش کریں گے، خداوند آپ آ کے اپنا الہی ہاتھ بڑھا دیجیے، اور خداوند ہماری عقلوں کو، ہماری لبوں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری سوچوں کو چھو لیجیے خداوند، ہمیں اپنے لائق بنا لیجیے، اور خداوند آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں خداوند یسوع راجا، اور خداوند یسوع راجا ہم آپ کی پاک راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ اپنی پاک راہیں اور بھی زیادہ ہمیں بتائیں، تاکہ خداوند ہم آپ کے قد کے مطابق خداوند یسوع مسیح پہنچ سکیں، تاکہ آپ کے نام کو خداوند ہماری زندگیوں کے وسیلے سے جلال ملتا رہے۔ خداوند ہم صرف آپ کے ہیں خداوند، خدا ہم اب اپنے نہیں رہے، بلکہ آپ یسوع راجا ہم میں زندہ ہے میرے بادشاہ، اور یہ زندگی ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ آپ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تاکہ خداوند خدا جب آپ ہماری زندگیوں میں، خداوند خدا ہمارے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، خداوند آپ نے ہمارے لیے تمانچے کھائے، اپنی داڑھی نچوائی، تھکوایا اپنے منہ کے اوپر، خداوند آپ نے ہمارے لیے کانٹوں کا تاج سر پہ پہنا، خداوند آپ نے ہمارے لیے پسلی پہ نیزہ کھایا، خداوند آپ نے ہمارے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ کیل ٹھکوائے ہیں خداوند یسوع جی، تک کیوں نہ پیارے خداوند ہم اپنی زندگی آپ کو دے دیں اور آپ کے مطابق چلیں، جو کلام مقدس کے مطابق خداوند جو کلام کہتا ہے اس کے مطابق چلیں۔ خداوند میں آپ کا بہت شکر کرتی ہوں، خداوند میں آپ کے نام کی تعریف کرتی ہوں،
खुदावंद मैं आपके नाम की हम्द करती हूँ, खुदावंद मैं आपके नाम की प्रस्तिश करती हूँ और आपके नाम की सिताइश करती हूँ। खुदावंद आप भले हैं, आपकी शफकत अबदी है, आपका प्यार निराला मेहरबान कदूस खुदावंद, मैं आपका शुक्र करती हूँ। मेहरबान 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 नहायत ही रहीम है खुदा, मेहरबान 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 ओ धीमा गुस्से में सदा, मेहरबान 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 रहमो दावत के तमाम भूले आई करता सपना दे हल्क तो सोए निहाल, मेहरबान 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 या रब बादशाह तेरी भी, मेहरबान 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 हमेशा तिकर रहेगी, मेहरबान 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 सब लोग कानूए दस्ते चा राजपीठ तिकर रहेगा, सफल करते यहोवा ताला, मेहरबान 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 आमीन हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ, खुदावंद के नाम की हम्द सना, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश और सताइश और खुदावंद के नाम का शुक्र। यीशु राजा आप जलाली और कुदूस और पाक हैं। सिस्टर यास्मीन आप हमारे साथ हैं, भाई नदीम आप लोग खुदावंद की प्रस्तिश में और खुदावंद की सना में जो भी गीत गाना चाहें, खुदावंद आपको बरकत दे। Bless you all. God bless you too. आज गाएंगे 305। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह Yes, thank you, Jesus. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेतारी है देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेतारी है देखो बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहले है दुल्हा का सेरा। Yes, thank you, Jesus. अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो Yes, तो खुदावंद। पहले है दुल्हा का सेरा, जिंदगी से तन कैसी प्यारी दुल्हन जैसी, जिंदगी ज़ेबतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है।
ये दुल्हा आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चांद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। आमीन। वहाँ सूरज ना चांद और थैंक यू ना मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो। कोई, यस, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, राज करने मसीह आ रहा है। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से यस आमीन। बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा जब नया होगा, सब नया होगा जब नया होगा, नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसा मसीह आ रहा है। वेरी सुन आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन हालेलुया। बहुत अच्छा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और बड़ा खूबसूरत गीत है ये जो आपने गाया। और इसमें वो जो है ना, जिंदगी से बतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, राज करने मसीह आ रहा। क्या बात है, खुदावंद का राज आना है। और राज में क्या होगा कि खुदावंद के साथ फिर सब लोग रहेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिर शेर और बकरी और इस तरह की कोई आयत है, मुझे पूरी नहीं आती, लेकिन ये कि वो सारे जो है ना जानवर इकट्ठे रहेंगे। मैं बल्कि कोशिश करती हूँ भी निकालने की। और उसमें बड़ा अच्छा है कि जब यीशु मसीह का राज आना है तो सब, फिर कोई गुनाह नहीं होगा, और फिर सब 1000 साला बादशाही यीशु की आनी है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के प्यार के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए। ये भी एक अच्छा वक्त है कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, क्योंकि देयर वाज अ टाइम कि अभी तक यीशु नहीं थे आए, और लोग यीशु का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। आपको पता है यहूदी जो हैं वो अभी भी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि यीशु आ चुके हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं। बाइबल मुकद्दस में ज़करिया की किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि फिर मैं उनके ऊपर फजल और मुनजात की रूह भेजूंगा, और फिर उनकी आंखें खुलेंगी, और फिर वो छाती पीटेंगे कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना था, कि उन्होंने अपने हाथों से जिसको छेदा था, ये लिखा हुआ है, जिन्होंने उसको छेदा था वो उसको पहचानेंगे, और फिर खुदावंद की बादशाही आएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर रोज़ खुदावंद की बादशाही का जिक्र किया करें। ये तो गीत रोज़ गाने वाला जो इन्होंने सिस्टर ने और भाई ने गाया। बहुत खुदावंद आपको बरकत दे। जी इस्लीम भाई हमारे साथ हैं। इस्लीम भाई आप भी गाएं, खुदावंद की तारीफ में बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की हमद हो।
ऐ खुदा पाक रूह Amen. Hallelujah. आज जुम्बिश तू कर Amen. Thank you, Jesus. झूले हर जिंदगी Amen. खाली दामन भी भर Yes, मेरे Jesus. ऐ खुदा पाक रूह Thank you. आज जुम्बिश तू कर Amen. Yes, Lord. जुम्बिश, खुदावंद आपकी जुम्बिश की जरूरत है हमें. Yes, Lord. मुर्दा दिल भी जला Yes, मेरे Jesus. Thank you, Lord. तो खुदा बादशाह Yes, Jesus Christ. अपनी कुदरत दिखा अपनी कुदरत दिखाइए मेरे यीशु राजा, हमें आपकी कुदरत की जरूरत है. कुदरत दिखा Amen. Hallelujah. आज तुझ पर लगी Yes, मेरे Jesus. हर बशर की नजर Amen. Thank you, Jesus. चूले हर जिंदगी Amen. Hallelujah. खाली दामन भी भर Yes, God. ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर Amen. खुदावंद आपका शुक्र हो. चूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर Amen. Hallelujah. जबरदस्त, बहुत अच्छा. आगे भी गाएं. पानी पानी पे थी Amen. जैसे जुम्बिश तेरी Amen. Hallelujah. आंखें देखे Amen. यहोवा तेरा शुक्र हो. की बारिश तेरी Yes, Jesus. Yes, Jesus. रूह की बारिश तेरी Amen. Hallelujah. वही बारिश तू कर Yes, मेरे Jesus. वही जुम्बिश तू कर यीशु के नाम से ऐसा ही हो. चूले हर जिंदगी यीशु के नाम से ऐसा ही हो. खाली दामन भी भर Amen. Hallelujah. Yes. ऐ खुदा पाक रूह यीशु के नाम से. आज जुम्बिश तू कर छूले हर जिंदगी जिंदगी खाली दामन. हूँ सभी Yes, मेरे Jesus Christ. अपनी कमजोरियाँ यीशु जी ऐसे ही है. बख्श दे ऐ खुदा Yes, मेरे Jesus. अपनी शहज़ोरियाँ अपनी शहज़ोरियाँ Yes, मेरे जानी. मेरी आहों को दे आज अपना असर चूले हर जिंदगी Yes. खाली दामन भी भर हालेलुया 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 Thank you, Jesus Christ. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. बहुत अच्छा, इतना खूबसूरत ये इसके अल्फाज बहुत अच्छे, और आपने बहुत अच्छा गाया भी है. हल्का सा वो मेरे ख्याल में ऊंचा शुरू हुआ है या कुछ. देयर वाज समथिंग रॉन्ग नहीं मगर. नहीं वो असल में होता ऐसे ही गाता लेकिन खाना खाया ना तो खाने नाल ना से असल जो साउंड नहीं चल रही थी ना सही 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 सही. पेट फुल है हाँ हाँ हाँ. लेकिन ये इट इज सो ब्यूटीफुल. इट्स रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग. जी सिस्टर यास्मीन, हम आपकी और भाई की तरफ आते हैं. उसके बाद फिर 2-3 गीत मैं गाऊंगी और फिर भाई सलीम भी बीच में अगर गाना चाहें तो हम जरूर खुदावन की प्रस्तुति में. और पाकरू के गीत ज्यादा कोशिश करें. और बड़ा अच्छा ये गीत था. मुझे तो इसके बल्कि वर्ड्स चाहिए, आप मुझे भेजना ये वर्ड्स. बहुत अच्छा गीत था जुम्बश का, क्योंकि पाकरू की जुम्बश की जरूरत है. हम सबको पाकरू की जुम्बश की जरूरत है. जी सिस्टर जी. अंधी आंखें खुले. आगे क्या है? आमीन. ऐसा ही है बिल्कुल. हमें चाहिए अंधी आंखें खुलें, क्योंकि अंधी आंखें किसको कहते हैं? वो नहीं कि आंखें देख नहीं सकती. अंधी आंखें जो रूहानी तौर पे मुर्दा लोग हैं वो भी अंधी आंखें हैं. ठीक है, तो ये बड़ी खूबसूरत आवाज है. अंधी आंखें खुले. आगे क्या? मुर्दा
मुर्दा दिल भी जला, मुर्दा वो दिल। खुदा बादशाह अपनी कुदरत दिखा, वाओ, ब्यूटीफुल। अपनी कुदरत दिखा, यस जीसस, अपनी कुदरत आंखें दिखा। तुझ पर लगी, यस मेरे जीसस, यस मेरे बाप हर पाकरू, बशर यस की हमारी नजर नजर आपके ऊपर लगी हुई है यस राजा जी, आपके ऊपर छू पाकरू, ले हमारी हर नजर आपके ऊपर लगी हुई है। जिंदगी, यस लॉर्ड, हमारी नजरें आपके ऊपर हैं हालेलुया खुदावन, हम आपसे मांगते हैं मेरे बादशाह। हम और किसी की तरफ देख ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी इस काबिल नहीं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। खुदावन सिर्फ आपका पाकरू इस काबिल है, पाकरू जो कि जोर रखता है, जो कि कुव्वत रखता है, जो ताकत रखता है, जो जिंदगियों को बदलता है, जो आंखें खोलता है, रूहानी आंखें देता है, और जो मुर्दा दिलों को खुदावन जगा देता है। जिंदगियां बदल जाती हैं, कब्रें खुल जाती हैं खुदावन, और जितने प्यारे यीशु राजा रूहानी तौर पे भी मुर्दे हैं और उनको भी आप जिंदा करते हो खुदावन, आप जिंदा करते हो, जिंदगी देने वाले आप हो। ये सारी जिंदगियां 7 बिलियन खुदावन जो लोग दुनिया में फिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े उससे भी कहीं ज्यादा खुदावन यीशु राजा जी, ये सब आपकी तरफ से, जिंदगी के मालिक आप हैं, जिंदगियां देते आप हैं खुदावन, जिंदगियां चाहते हैं खुदावन, जिंदगी चाहते हैं अपने घरों में खुदावन, अपने घरानों में जिंदगी चाहते हैं, अपने बच्चों में जिंदगी चाहते हैं। जिंदगी खुदावन जब तक आपके अंदर नहीं कोई जलता खुदावन, पाकरू के अंदर नहीं जलता, वो जिंदगी नहीं है मेरे बादशाह। जिंदगियां दे हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, हमारे घरों को, हमारे घरानों को खुदावन, जिंदगी दे मेरे जीसस क्राइस्ट। हमें जिंदगी चाहिए आपसे खुदा, शोले की तरह खुदावन जल मेरे बादशाह, आ तेज आंधी की तरह, तेज आंधी की तरह रू आ, गहरे बादल की तरह रू था, तेज आंधी की तरह रू आ, गहरे बादल की तरह रू छा, साधकों के मजमा में, रास्तों की टोली में, साधकों के मजमा में, रास्तों की टोली में, रुके मसा से तू नहला, गहरे बादल की तरह तू आ, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रू छा, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रू छा, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रू छा, आंधी की तरह रू, तेज आंधी की तरह खुदावंद आए, तेज आंधी की तरह आए खुदावंद यीशु राजा, हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को, जितने हमारे घरों के फैमिलीज हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके घरों को छू ले तेज आंधी की तरह खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं जी। सिस्टर जी आप गाइए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। God bless you all. गीत नंबर 354 गाएंगे। रूह की बारिश आमीन, हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। आमीन, यस लॉर्ड। यीशु मसीहा चुने का उसको वक्त है ये। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चुने का उसको वक्त है ये। आमीन, ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। आमीन, थैंक यू जीसस। उसके लहू से
पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है। Yes, Lord. की शिफा आती है। 63. खुदावंद की शिफा आती है। Amen. Yes, Jesus. तेरे गुनाह चाहे हो कर मजीद, पर ईमान धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो कर मजीद, बल्कि मालिंद धो देगा वो। Amen. यीशु के नाम की तारीफ हो। से देगा जन्म, जन्मों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है। खुदावंद की शिफा आती है। Yes, thank you, खुदावंद Jesus. की शिफा आती है। Amen. Hallelujah. उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है। खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम आए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। उजला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। उम्र बेकार तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। उजला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है। खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है। बरसा चाहती है। Amen. खुदावंद की शिफा आती है। Yes, thank you, Jesus. खुदावंद की शिफा आती है। Yes, Lord. Thank you, Lord. खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हों किरमजी, बर्फ की मानद। यीशु मसीह धोते हैं बर्फ की मानद। तेरे गुनाह चाहे हों किरमजी, बर्फ की मानद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, चरणों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसना चाहती है, और अपने घर में वो बरसना चाहती है तो बरसने दें उसको।
हमारे गुनाह अगर किरमजी भी हों तो वो बर्फ़ की मानद हो देता है। और बहुत दफ़ा हम समझते हैं कि नहीं, हम गुनाह नहीं करते। ना भी किए हों तो रोज़ खुदावंद को अपना आप दें, रोज़ के खुदावंद मुझे धो, मेरे गुनाह किरमजी हैं। हम ना जानते हुए भी किरमजी गुनाह करते हैं, हम खुदा को नाराज़ करते हैं हर रोज़। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की वो जितनी आजिज़ी कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर सब कुछ कर भी चुको तो कहो कि हम नकम्मे खादम, अपने आप को नकम्मा कहेंगे, हमने कुछ नहीं किया खुदावंद। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो। महक, आप हमारे साथ हैं, आप खुदावंद की प्रस्तुति में गीत गाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय हो। यीशु मसीह की जय हो। आपकी बेबी का क्या हाल है ये बताएं। हाँ जी, शुक्र है खुदावंद का, पहले से बेहतर है, लेकिन दुआ की जरूरत है उसे। ये हुआ क्या है उसको? बुखार है उसे। अच्छा जी, बुखार है, फ्लू है। अच्छा जी, चलें, खुदावंद उसके साथ है। चलें जी, गाइए। हाँ जी, मैं गाऊंगी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। आमीन, हालेलुया। ये भी हमारी सिंगर बच्ची है, ये बहुत खूबसूरत गाती है बच्ची। खुदावंद का शुक्र। ये जो उस दिन गाया था ना गीत, वो वाला जिनासी गीता दा गीत दा, वो बड़ा प्यारा। केड़ा सी? बोल भूल गए ना, उन्हें याद से बोल पा भूल गए। मैं कौन सा गाया था उस दिन जब आप आए हो पहले? मैं कौन सा गाया है परसों चौथ को जब गाया? वो था इंसान भी थोड़े ने तेरियां सिफतां गावन में। राइट, वो बड़ा प्यारा गीत। प्लीज अगर आप दोनों गा लो चलो, ये कह सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जी थी, बहुत प्यारा। और ये पास्टर नवीद की सिस्टर है, पता आपको सलीम? ये पास्टर नवीद की सिस्टर है। अच्छा, ये महक है। हाँ जी, ओ सलाम सिस्टर जी, सलाम। थैंक यू। चले जी, चले हम गाते हैं खुदा उनकी प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। आमीन। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी हालेलुया, तू सुनदा मेरी। यस जीसस, यस जीसस। तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। आमीन। तू ते फजलां दे नाल अपने फजलां दे नाल ओदी चोली परी। यस जीसस, यस मेरे बादशाह, यस मेरे कदूस, यस मेरे खुदा, मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा। आमीन, थैंक यू जीसस। लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरन। आमीन। पावे पिया रुआ पावे लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरन। कर देंदी है तबाह, कर देंदी है तबाह तेरी अग दी छड़ी। तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू दा चश्मा यहोवा यरी। तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे। आमीन। यीशु जी आपका खून, यस लॉर्ड। आमीन।
Amen. Hallelujah. तसल्ली दा The चश्मा Chashma यहोवा Yahweh. Yes, thank you, Jesus. यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी Amen. तसल्ली Tasalli दा da चश्मा Chashma यहोवा Yahweh. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. पहले कवालिया दिया वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया Amen. Yes, Lord. तू ते फसला देना लपने फसला देना ओदी चोल तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा Yes. चश्मा तसल्ली यहोवा दा चश्मा. Yes. इत्मीनान और तसल्ली सिर्फ खुदावन के अंदर से निकलती है. हालेलुया आमीन. हालेलुया. दूसरा गीत आइए प्रस्तिज में आगे बढ़ते हुए गाएंगे तेरियां सिफ्ता गावन ले इंसान भी थोड़े इसीलिए खुदावन ने करोड़ों फरिश्ते ऊपर बनाए आसमान के ऊपर. करोड़ों फरिश्ते वो उसकी सिफतें गाते हैं. इंसान भी थोड़े ने यस. तेरियां सिफ्ता गावन ले इंसान भी थोड़े ने आमीन. हालेलुया. सारे पाक फरिश्ते कुल सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने तेरी सिफ्ता गावण ले इंसान भी थोड़े ने यस लॉर्ड. जरूर तू अजीम तू अजीम तू रहीम तू गयूर तू खुदावन मैं बेबी के ऊपर यीशु जी आपका लहू लगाती हूँ. खुदावन इसको सर से लेकर पांव तक आपके पाक लहू के अंदर छुपाती हूँ. खुदावन इसकी आंखों पे, इसके होंठों पे, इसकी ज़बान पे, इसकी सोचों पे, दिल पे यीशु का लहू लगाती हूँ. खुदावन इसके जिस्म में जितनी अभी इसकी कुव्वतें काम कर रही हैं उनको अपने खून से धो दीजिए. खुदावन बुखार की बदरों में तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ. छोड़ इस जिस्म को यीशु के नाम से. आपका शुक्र. जान भी थोड़े ने तेरियां सिफ्ता गावण ले इंसान भी थोड़े थोड़े ने यस लॉर्ड. यस मेरे बादशाह. इंसान भी थोड़े ने. यस मेरे जीसस. यस मेरे खुदा. रात नेरी दिन राजा यस जीसस. तेज लेंदिया तेरा नाम जुगनू पंछी चिड़िया आते जुगनू पंछी चिड़िया आते ए वानव थोड़े ने तेरिया सिफ्ता गावण ले इंसान भी थोड़े ने यस जीसस. रहीम तू रहीम तू तो अजीम तू आमीन. रहीम तू गयूर तू अजीम तू आमीन. हालेलुया. हालेलुया. आसमाना तो ऊंचाई साडा रब लिखा आमीन. यस. तो ऊंचाई साडा रब लिखा आसमाना तो भी ਉੱਚਾ ਹੈ. आमीन. लिखदा रहंदा गीता विच फराज तेरियां सिफतां लिखदा रहंदा गीता विच फराज यस मेरे जीसस. तेरे लिए साडे दिल दे तेरे लिए दे साडे दिल दे अरमान भी थोड़े ने तेरियां सिफतां गावण ले इंसान भी थोड़े ने. Amen. Hallelujah. पानिया में
चन सूरज तेरे तेरे तेरिया सिफता गावन विचे दुनिया दे सुल्तान Thank you, थोड़े Jesus. ने दुनिया दी थोड़े ने दुनिया दी सुल्तान वे थोड़े ने Amen. बहुत खूबसूरत. Beautiful. इंसान भी थोड़े ने Yes, मेरे Jesus. रहीम तू गयूर तू अजीम Yes, तू Lord. Yes, Lord. रहीम तू गयूर Thank you, तू Jesus. अजीम तू Thank you, Jesus. अजीम तू Thank you, Jesus. अजीम Thank you, तू। Jesus. Thank you, Praise Jesus. the Lord, hallelujah. हम शुक्र Praise करते the हैं Lord. खुदावंद ये का. वो पीली किताब में है ये गीत रूह की वो क्या है वो नहीं, ये नया गीत होगा, ये इसमें नहीं होगा. ये महक आप मुझे भेज देना इसके वर्ड्स, तो फिर मैं इनको भेज दूंगी. मैं सेंड कर देती हाँ, थैंक यू प्लीज हाँ जी जी. गॉड ब्लेस यू. और मैंने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, मगर वो ना वो नहीं है, सही नहीं है ना, नेट नहीं सही है, तो मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं सही आ रही थी. थोड़े ना वर्ड. आवाज ही बयान थोड़ा यार मजा नहीं आया तो उधर बहुत मजा आया नाल बच्चा भी रो रहा है नाल ना नहीं, बच्चा कोई नहीं है, वो बड़ा सोना बच्चा है, उसको बच्चा नहीं सिर्फ कहना, वो बहुत सोना बच्चा है. Who was rowing? इसका बेबी है. और आपको पता है कि खुदावन ने इसको इतनी बड़ी शिफा दी थी कि ये जब इसकी मामा यहाँ से गायब होने की कोशिश करती है ना हमारे ग्रुप से, तो यीशु इसको वापस ले आते हैं. वो बच्चा बीमार हो जाता है और वो बेटी है कैरोलिना. हाँ, और खुदावन ने उसको पता कहाँ से शिफा दी थी, बिल्कुल मतलब खत्म हो गई थी ये बच्ची, और यीशु ने फिर दुआओं से शिफा दी. तो खुदावन का शुक्र है, उसके नाम की तारीफ हो. लेकिन वो बच्ची जो है ना, वो मसा को पहचानने वाली बच्ची है, बहुत खुदावंद की बरकत वाली बच्ची है, क्योंकि ये माँ बहुत बरकत वाली है ना. ये भी बहुत दुआएं करने वाले लोग हैं सारे बच्चे, ये जो है ना पास्टर नवीद और ये और इनका भाई. तो खुदावंद में ये बच्चे बहुत बड़े हैं, तो इनके बच्चों को और बरकत, और इनके बच्चों को और बरकत मिलेगी. इसी तरह से है कि खुदावंद जो है वो बरकतों पे बरकतें देता है. जनरेशन्स में मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात कभी भी नहीं हमसे दूर हो सकती, लेकिन खुदावंद अपना जलाल दिखाता है. मुश्किलात के अंदर से भी खुदावंद का जलाल जब हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल हालात में खुदावंद हमारे साथ है, तो फिर हमें अच्छा लगता है. हालेलुया. इतना दिल कर रहा है कि गाते जाओ. मगर मैं आखिरी गीत गाऊंगी, वो है ज़बूर 91. यार मेरा कितने की है आपने भी गाना है? अच्छा जी, चले आप गा लें, उसके बाद मैं गाती हूँ. आप गा लें. और हाँ, टाइम क्या हुआ है? मैं सोच रही थी कि अभी हम कलाम की तरफ, मैं असल में ना चाह रही हूँ कि हम कलाम को ज्यादा टाइम दें. 10:30 हुए ना. चलें जी, मैं गीत गाना चाह रही हूँ, बड़ा खूबसूरत. ये जरूरी है कि हम हर रोज अपने आप को खुदा के पैरों के नीचे देते हैं, और हम खास तौर पे कैरोलिना को देते हैं. खुदावन इसके जिस्म, जान और रूह के ऊपर आपका लहू डाल देती हूँ. खुदावन इसकी आंखों पे, होंठों पे, जुबान पे, सोचों पे, दिल पे. खुदावन बुखार की इस नापाक बदबू को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि इस जिस्म को छोड़ दे. यीशु के नाम से इसके फ्लू की सारी नापाकी यीशु के नाम से निकल जाए और छोड़ दे. इसके गले के ऊपर यीशु का लहू खुदावन लगाती हूँ. कोई भी इन्फेक्शन है, नापाकी की सारी बदरूहें यीशु के नाम से हमेशा के लिए इस बच्ची को छोड़ दे. खुदावन इसके छोटे से प्यारे से दिल के ऊपर आपका लहू लगाती हूँ. खुदावन जैसे जैसे ये बच्ची खून और गोश्त में बढ़ती है, आपके इरफान में भी बढ़े, आपके प्यार में भी बढ़े, आपकी मोहब्बत में बढ़े. और हम आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत बेबी के लिए. बड़ी खुदावन यीशु राजा जी, हम आपकी मेहरबानी है. ये बच्ची यीशु राजा, आपके बहुत बड़ा पाक हाथ खुदावन इसके ऊपर है. इसको और भी बढ़ाएं खुदावंद अपने में, और जैसे जैसे ये अपने खुदावंद खुदा खून और गोश्त में बढ़ती है, खुदावंद यीशु आपके इरफान में बढ़े जैसे आपके मुतालिक लिखा है. तो खुदावंद मैं इसको भी आपके पैरों के साया के अंदर देती हूँ इस गीत के वसीला से, और बाकी सबके लिए भी, जितनों के लिए मैं गाऊंगी वो सबके लिए है. खुदा दे पर दे ठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंब दी छाहेटा ते आराम पांदा है. बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नु आखांगा. बना मेरी खुदावंद
मैं आसरा उस ते रखांगा, दिला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस ते रखांगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, बाबा के मरी भारी तो बाबा दे मरी भारी तो कदो तेनू छुड़ावेगा, बाबा दे मरी भारी तो कदो तेनू छुड़ावेगा। तेरे हथियार होवनगे, खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवनगे, खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दागी, डरावेगा ना दिन दागी, ना तेनू रात अंधियारी, डरावेगा ना दिन दागी, ना तेनू रात अंधियारी। ते अपने काम दे हेठा लुकावेगा, खुदा तेनू ओ अपने पर दी छां हेठा, ओ अपने पर दी छां हेठा, सो देवेगा पनाह तेनू, ओ अपने पर दी छां हेठा, सो देवेगा पनाह तेनू, खुदा दे पर देहेगा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा, तेरो आराम पांदा है। जी, एक आखिरी गीत हम भाई के साथ गाएंगे, स्लीप भाई के साथ, उसके बाद फिर हम दुआ कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं और भाई नदीम दुआ करेंगे। गाएं? यस। चलो। मैं हुन क्यों डरा, मैं हुन क्यों डरा, आमेन। यस लॉर्ड। मेरा जिंदा जब जिंदा खुदा आपके साथ है, डरने की जरूरत ही नहीं है, यीशु राजा आपके साथ है। आमीन। यस मेरे जीसस। फिर क्यों डरा, आमेन। हालेलुया। फिर क्यों डरा, यस मेरे जीसस क्राइस्ट, मेरा मैं आपका शुक्र करती हूँ। खुदा मेरे नाल है। यस लॉर्ड। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, आमेन। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरीना ओ मैनू ए कहंदा ए, आमीन। यस। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, यस जीसस। डरना ओ मैनू ए कहंदा ए, फिर क्यों डरा, यस ते जीसस। हुन क्यों डरा, यस लॉर्ड। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमेन। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा, आमेन। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा, आमेन। यस। केड़े लफ्ज़ां नाल करां शुक्र अदा, यस यस केड़े यस। लफ्ज़ां नाल करां शुक्र अदा, यस। हर थैंक पासे यू। ओदा ही जलाल है, मैं हुन क्यों डरा, यस जीसस। ते फिर क्यों डरा, आमीन। मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे नाल नाल है। है। यस। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी,
करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी ऐसे ही है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी लभदा अयाली जिवें खोई हुई पेड़ नू लभदा अयाली जिवें खोई हुई पेड़ नू करदा ओ इंज मेरी पाल है मैं क्यों डरा यस मेरे ते जीसस, फिर क्यों डरा आमेन। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है Yes. यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए Amen. तेरी ना ओ मैनू ए कहंदा ए Amen. यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए तेरी ना ओ मैनू ए कहंदा ए Amen. Yes, Lord. मैं क्यों डरा ते हुन क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है Amen. ਬਾਦ ਛੱਜ ਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਦ ਛੱਜ ਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਤੈ ਤਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ Yes, मेरे ਤੇ Jesus. ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ Amen. ਮੇਰਾ Hallelujah. ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ Yes, Jesus. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ Amen. ਤੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो जी। हालेलुया शुक्र हो पाक हवा का। इन सारी खुदावन जितनी भी आपकी ताज़ीम की गई खुदावन, हमारे होंठों से, हमारे दिलों से, हमारे जिस्मों से खुदावन, उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और भाई नदीम के साथ मिलकर दुआ करते हैं कि अब हम कलाम मुक़द्दस की तरफ भी आने वाले हैं ताकि खुदावन का पाक रूह हमारे साथ हो। और सना 90 ज़बूर खोल लें, हम बाकी हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। और आज सिस्टर यास्मीन आप उर्दू पढ़िएगा और वो इंग्लिश पढ़ेगी। जी कदूस अजीम खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के पूरा टाइम के लिए जीसस, सारी प्रेजिंग के लिए। बहुत मजा आया जीसस, हम सबको हमेशा हमको इसी तरह इकट्ठा रखें, हम आपकी डेली प्रेजिंग करें हमारे घरों में जीसस। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि डेली आपके तारीफ होती है, आपकी हम गाई जाती है जीसस, आपका कलाम सुना जाता है और वाकई हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं, बहुत बड़े मुझसे होते हैं जीसस, जिसके हम शुक्र अदा करते हैं जीसस। इस ग्रुप की एक बहुत ही खूबसूरत चीज हमारे हाथ में है जीसस, हम इसको हमेशा कायम रखें। इसके वाली हैं हमारी पास्टर साहबा, उनको बहुत ब्लेस कर जीसस, सेहत दे, ताकत दे, दोबारा से की जवानी दे जीसस, कि ये आपके लिए हमेशा खड़ी रहें। जिस तरह डट कर रहना जिंदगी में आपके ये जंग लड़ी है जीसस, ये आगे भी उसको बढ़ाएं और तमाम करें, उनके जो भी पैरोकार हैं जीसस, और ये आपके झंडे को लेकर हमेशा खड़ी रहें और आपके नाम की रोशनी को बुलंद करें जीसस, और फैलाएं और ये ग्रुप को बहुत फैला जीसस, इसकी हदों को बढ़ा जीसस, और घर घर में ये इतनी आसानी के साथ हम एक नॉब दबाने के साथ हम किसी भी घर में सुन सकते हैं, आपकी आवाज को पहुंचा सकते हैं जीसस। इसकी हदों को बढ़ाएं और जितने फेसबुक पर हमारे साथ व्यूअर्स हैं उनके घरों में ब्लेसिंग आए जीसस, आपके कलाम को सुने और हम एक अच्छे मसीही बने, और ये कलाम जिंदगी बदलने वाला कलाम है जीसस, और इसके थ्रू हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं जीसस। आप जल्द आने वाले हैं, जिस तरह आज गीत भी गाएंगे जीसस, इसके लिए हम सबको तैयार कर, और हम जो भी कलाम पढ़ने वाले हैं जीसस, वो हमारी जिंदगी में सब आपकी होली स्पिरिट की गाइडेंस हो हमारे घर में जीसस, आपकी ब्लेसिंग होगी तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तौर पर ऐसा करेंगे। आमीन आमीन आमीन। जी
अभी हम सना और सिस्टर यास्मीन हम लोग 90 ज़बूर और उसका जो भी हिस्सा बाकी रह गया था वो हम कंप्लीट करेंगे आज. हाँ जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you too. साम नंबर पढ़ेंगे 90 और उसकी पढ़ेंगे वर्स नंबर 11 से। हम्म. तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को। आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you too. If only we knew the power of your anger, Anger. your wrath is as great as the fear that is your due. Amen. That is your joke. Yes. वर्स नंबर 12। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिन हासिल करें। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Amen. Amen. Hallelujah. वर्स नंबर 13। ए खुदावन बाज आ, तब तक और अपने बंदों पर रहम फरमा। आमीन। Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Amen. Amen. और नंबर 14। सुबह को अपनी शफकत से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्रम रहे। आमीन। Amen. Us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Amen. Amen. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Amen. जी sister जी. नंबर 15। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने बरस हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। आमीन। Amen. Glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. Amen. Amen. और नंबर 16। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो। आमीन। May your peace be shown to your servants, your splendor to their children. Amen. पता नहीं जब सना बोलती है तो आवाज करती है, पहले आप बोलते हैं तो कोई नहीं करती है, क्या बात है? वर्स नंबर 17। और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क्याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को क्याम बख्श दे। आमीन। Amen. Amen. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Amen. Amen. God bless you. God bless you both. खुदावंद हमेशा आपको बरकत दे और आपको अपनी बरकतों में छुपाता रहे। आमीन। जी सिस्टर जी, अब हम आएंगे अब हमारा में हमें फिलिपियों के नाम का खत था 3rd वाला, और हम उसका बाकी हिस्सा पहले करते हैं और उसके बाद देखेंगे टाइम हुआ तो फिर हम जाएंगे दूसरी तरफ। सिस्टर जी, इसकी मैम 10 वर्सेस तो हो गई थी। अच्छा 10 वर्सेस हुई हैं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जुड़ने के दर्जा तक पहुंचूं। जी चलें जी, शुरू करें। 11 वर्स से शुरू करें, बल्कि 10 आपको पढ़नी पड़ेगी साथ, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। ये मुझे लगता है वैसे कर ली थी। हाँ जी। God bless you all। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम और उसका चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 10 से पढ़ेंगे। और मैं उसको और उसके जीवने की कुदरत को, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जीवने के दर्जा तक पहुंचूं। तो इसमें पौलुस रसूल कह रहे हैं, और मैं उसको उसके जीवने की कुदरत को, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। तो वो कह रहे हैं कि उनके मतलब किस तरह जीसस जीव रहे थे और किस तरह हमें उनके दुखों में शरीक होना है और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। पास्टर साहब, ये क्या मतलब उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं? क्योंकि यीशु ने कितने दुख उठाए थे, और आपको पता है कि कांटों का ताज पहनना
कितना मुश्किल काम है। एक कांटा अगर आपके हाथ में चुभ जाता है तो आपको पता है कि कितना ज्यादा दर्द होता है। और यीशु मसीह ने पूरा कांटों का ताज पहना था, और एक थोड़ी देर के लिए नहीं पहना था, कितनी देर के लिए, रात सारी भी रहा खुदावन के ऊपर, और फिर वो मसलूब हुए उस वक्त भी था, कितनी देर तक। सिर्फ इसी को देख लें, एक ही बात को। फिर यीशु ने जो कोड़े खाए, कोड़े जो है वो इतनी मुश्किल से मतलब लाइक वो जब कोड़ा लगता है ना तो वो साथ गोश्त को भी उतारता है, ठीक है ना। उसका एक अगर ना भी गोश्त को उतारे, हालांकि वो सुना है कि आगे पीतल लगा होता है जहाँ पे कोड़ा मारा जाता है, और वो जिस पर खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, वो कितनी दर्द की बात थी। 39 इतने देर लग जाती है, और कोड़ा खाते खाते यीशु मसीह का क्या हाल हुआ होगा। तो हम लोगों को हल्की सी मुश्किल आती है ना तो हम तड़प पड़ते हैं ना। तो मौत, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों पे कील ठुकवाए थे। ये देखें यहाँ पे कील ठुकवाना कितना मुश्किल काम। हर काम यीशु ने मुश्किल किया। पसली पे नेजा खाया, खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। तो मौत से मशाबत पैदा करनी है हमने कि हम भी दुख सहें। जैसे हमेशा हम जितना ज्यादा पीछे करते रहे हैं, हमें खुदावंद ने कितने पैगाम दिए हैं। खुदावंद ने हमें बार बार कहा है कि हम बर्दाश्त करें, हम एक दूसरे के साथ यानी कि उन चीज़ों को नुकसान समझ लें जो कि मसीह से हमें दूर करती हैं, ताकि हम मसीह को हासिल कर सकें। मसीह को हासिल करने के लिए फिर आपने यीशु मसीह की मौत के मुशाबत जो है ना वो आपके होने चाहिए। दुखों में दुख सहें, ठीक है, दुख सहें। दुख नहीं हम सहते, हम जल्दी जल्दी से उसका वो कर लेते हैं। उसके किसी ने हमें कोई बात की तो उसको बातें सुना देते हैं, किसी ने हमारा नुकसान किया, हम उसका भी करने की कोशिश करते हैं, हम पूरा बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते ना ऐसे, वो दुख सहते हैं, ठीक है, वो बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त कर आराम से नहीं आप कर सकते, आप दुख सह के बर्दाश्त करते हैं। तो खुदावन हमने यीशु की तरफ से अपने को ये नहीं कि कोड़े खाओ और ये जो है स्लीप कांडों का ताज पहनो। हालांकि ये जो हम जो लोगों से बातें सुनते हैं ये भी कोड़े ही हैं, ठीक है, ये भी कोड़े ही हैं। तो कोड़े समझे कि ये यीशु मसीह ने जैसे कोड़ा खाया था ना, तो मैं चुप करके खामोशी से, तो मैं भी खामोशी से खा लूँ। ये है मौत, खुदावन की मौत से हमें मुशाबत, यानी कि मौत तक भी यीशु मसीह पहुंचे। इतना हमारे अंदर होना चाहिए कि एक वक्त आए कि हम कहें कि नहीं अब नहीं बर्दाश्त होता। ये बाजुकात हमने, मैं और मेरे हस्बैंड ने 14 ईयर्स के बाद, 14 ईयर्स हमारी शादी को हो गए थे, तब हमने मुंह खोलने शुरू किए। तब हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे अंदर कुव्वत नहीं थी रही कि हम बर्दाश्त करें। तो ये जब एक वक्त आता है ना आपके अंदर कुव्वत नहीं रहती बर्दाश्त करने की, तब आके खुदा जो है ना वो आपको बरकत देता है। और कई बातें हैं जो कि होती हैं आपके ससुरालों में हो जाती हैं, क्योंकि आप एक घर से दूसरे घर में जाते हो, ठीक है ना, यानी कि आपका माहौल हो रहा है, एक नए माहौल में आप जाते हो। तो बाज़ औक़ात मुझे कोई कहता है ना कि ये तेरे ससुराल वालों ने ये, मैं कहती हूँ नहीं, मेरे खुदावन की मर्जी से हुआ, कुछ नहीं होता। मुश्किलात सहनी है हमने, हर एक जगह पे सहनी है, जहाँ पर भी, और वो खुशी के साथ सहनी है। खुशी के साथ सहेंगे तो बरकत मिलती है। तो मैं उनको बताई थी कि देखे खुदावंद ने अगर मेरे से इतनी बड़ी बुक लिखवाई है जो कि मुजज़ात की बुक है, तो वो कैसे हुआ है? ये कि बर्दाश्त से। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कैसे मुजज़ात होते हैं? मुजज़ात तब ही होते हैं जब आप बर्दाश्त करें। तो खुदावंद की मौत से मुशाबत पैदा करनी है। और अब्रानियों के नाम खत जो है ना उसमें लिखा हुआ है, और अपने जिस्म में यीशु के दुखों की कमी को पूरा करो। यानी कि अभी भी कम दुख थे यीशु के, कहते हैं उसकी कमी जो है ना दुखों की, उसको हम अपने जिस्म में पूरा करते हैं, यानी कि हम भी दुख सहते हैं। तो कई भी मसीहों के लिए दुख दूर नहीं है, किसी ना किसी तरीके से दुख जो है ना वो आपके साथ होता है। तो उसको देखिए कि कैसे मसीह के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर अपने आप को गुजारें उसमें मौके वक्त में। जी सिस्टर जी। जब हम यीशु की मौत के मुशाबत करेंगे, यीशु मसीह के लिए जब दुख सहेंगे, तो फिर हम किसी तरह मुर्दों में से जी उठने की दर्जा तक पहुंचे। यानी कि मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठे, तो फिर हम भी फिर जब मरेंगे तो फिर जी उठेंगे ना। अगर मरना ही नहीं है तो जी उठना कहाँ से है? तो हमने मरना है, हमने अपने आप को मारना है, हमने अपने आप को खत्म करना है, फिर हम। जी सिस्टर जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी पास्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। 11 वर्ष तक भी मैंने कर दिया है, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचो। ये दर्जा है एक, कि मसीह की खातिर हमने मुर्दों में से जी उठने का दर्जा।
करें सिस्टर जी। हाँ जी। मैं ये देखती हूँ। नहीं, आप 11 करें, बल्कि 11 को करें। मैं चाहूंगी कि आप एक दफा बोलें इसके ऊपर, 11 वर्ष पे। हाँ जी पास्टर साहब, मैं अपना ये देख रही हूँ, मेरा चैप्टर कहाँ गया? चैप्टर नंबर 30 कह रहे हैं ना हम लोग? जी 3 चैप्टर है, चैप्टर 3 वर्स 11। क्या आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं पास्टर साहब, मैं बिल्कुल, मेरी आवाज आपको अभी आएगी, मैं बोलूंगी, मेरी आवाज जरूर आएगी। मैं ये देख रही हूँ कि मैं वो चैप्टर नंबर 3 पे हूँ, पर मुझे वो वर्स नहीं मिल रही जो मैंने अभी पढ़ी है। 11 वर्स करें ना, 11 वर्स को पढ़े। 10 वर्स आपने पढ़ी थी ना, 10 वर्स पढ़ी है आपने। सही है ना? हाँ 3 में 11। हाँ जी। इफ्सी इफ्सी कर रहे हैं? नहीं, पास्टर साहब, हम इफ्सी कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? नहीं, फिलिपियो के नाम खाता है। मैं वो हवा के पंखे की हवा के साथ, हाँ जी, मेरा चैप्टर इधर उधर हुआ, मैंने बीच में रखा भी भाई है। अच्छा, हाँ जी, सॉरी जी, सॉरी। हाँ, फिलिपियो के हाँ नाम खाता है, और उसका हाँ जी, वर्स नंबर 12 से शुरू करूंगी, और इसका मौजू है निशान की तरफ दौड़ना। आमीन। ये गलत 11, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जूटने के दर्जा तक पहुंचूं। तो इसमें कह रहे हैं कि मैं भी किसी तरह मुर्दों में से जूटने के दर्जा तक पहुंचूं। लेकिन इसमें मुझे जो समझ आई है वो ये है कि जब हम खुदावन में मोएंगे, यीशु मसीह पर ईमान रखकर यीशु मसीह में मोएंगे, तो फिर ये है कि हम जी भी उठेंगे। असल में ये है कि ऊपर वाली आयत में देखें ना, मौत से मुशाबत पैदा करना। हमने खुदावन की मौत से मुशाबत पैदा करनी है, कि जैसे यीशु मसीह ने दुख सहे, हमने भी दुख सहने है ना, ठीक है। जैसे यीशु ने मुशाबत, यानी कि उसके जैसा दुख सहना। जैसे यीशु ने तो बड़ा दुख सहा था, हम तो जरा सी बात में एकदम से चरमला उठते हैं ना, लेकिन खुदावन ने तो बहुत बड़ा दुख सहा था। तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो सहना जो कुछ खुदावन ने एक ही दिन में सहा, एक रात में, एक यानी कि सुबह के टाइम, और अगले दिन में, जब तक उनकी मौत नहीं हुई। तो अब लिखा हुआ है कि जब हम मौत से मुशाबत जब हम करेंगे ना खुदावन के, यानी कि हम भी दुख सहेंगे। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया सारा, लेकिन ये है कि तब हम मुर्दों में से जीने के दर्जा तक पहुंचेंगे। यानी कि जब हमने मरना है उस मौत के मुशाबत, यानी कि हमने भी बहुत ज्यादा अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम खुदावन की खातिर बर्दाश्त करें, फिर हम जी उठेंगे। जी उठने के दर्जा तक पहुंचना जो है ना, वो इस तरह से है। हाँ जी, हम आएंगे वर्स नंबर 12, निशान की तरफ दौड़ना, इसका मौजू है। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो क्या वो यही कह रहे हैं पौलुस रसूल कि मैं भी उसी चीज के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था? यानी कि ये मुराद है ना उनकी कि जीसस ने मतलब के लोगों को निजात देने के लिए आए थे, खुशखबरी देने के लिए आए थे। हाँ जी, असल में उनका मतलब है कि रोज का रोज ये काम करना है। कहते हैं कि मैं जो है कर नहीं चुका, अभी भी मैं कर रहा हूँ। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक आपकी जिंदगी है ना, तब तक आप, ये रोज की एक फाइट है, रोज की फाइट। आपको पता है कि रोज आपकी जिंदगी में आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस भी रोज आते हैं, क्योंकि आपको वहां पर खुदा ने टारगेट देता है, रोज आपको टारगेट देता है कि उसको आप अबूर करें, ठीक है ना। तो ये है कि वो कहता है कि ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यानी कि मैंने कर लिया हासिल, मैं बैठ गया हूँ, ऐसा नहीं है। रोज अपने आप को कहते हैं कि पकड़ा, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता है। यानी कि रोज का रोज मैं कर रहा हूँ, अभी भी जिस बात के लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, मैं अभी तक कर रहा हूँ और करता रहूंगा। जी अब जी आयत नंबर 13, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये कि करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ
वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जी बे सिस्टर जी करें आप। हाँ जी, इसमें पौलुस रसूल कह रहे हैं कि भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी खुशफहमी नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ। बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ूं। हाँ, तो भूलना है जैसे ना पीछे यहाँ की चीजों को। हाँ हाँ जी, जी, कि पीछे रह गई जो चीजें उन्हें भूलकर आगे की तरफ, यानी कि वो अपने बारे में कह रहे हैं ना कि जब वो पहले डाकू थे, लोगों को सताते थे। हाँ, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पीछे की चीजों को हमें भी भूलना है, ठीक है ना। भूल, अब हम लोग पता क्या करते हैं, और पुरानिया 100 साल पुरानिया चीजा सी फड़ के रखने हैं, और नहीं वो फलाने बंदे ने मेरे साथ यूं किया था, फलाने बंदे ने मेरे साथ यूं किया था। हमने पूरी लिस्टें बनाई होती हैं, पता आपको। देयर वॉज अ टाइम कि मैं कभी भी किसी का याद नहीं रखती थी। फिर मैंने देखा कि लोगों को, मैंने देखा कि वो पुरानी बातें आपको पता भी नहीं होता तो वो आपको याद कराते थे। तो मैंने सोचा, फिर मैंने याद करना शुरू किया। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा याद, ताकि किसी को कह तो जाए। यानी कि मैंने, जब मेरी शादी हुई थी तो बिल्कुल भी हमें तो जिंदगी का बिल्कुल पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी मदर जो थी सिर्फ हमें प्रेयर में ही उन्होंने बढ़ाया था। हमें प्रेयर करना ही आता था बस, और कुछ भी नहीं था आता। दुनिया को देखा जब ना, तो दुनिया अजीब सी थी। तो मेरी शादी एक गांव में हुई थी, और गांव के लोग भी जब हमारे घर में आते थे ना, हालांकि मेरे मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बड़े अच्छे थे वो लोग, लेकिन वो जो आते थे ना, मैं उनको देख देख भी परेशान होती थी जो गांव के लोग आते थे। और मैंने जब पढ़ा था ना कि गांव के लोग बड़े सादा होते हैं, हमने पढ़ा है किताबों में मैंने देख लिया कि सादा नहीं होते, बहुत वल फ्रेम जिसको कहते हैं ना, उनके अंदर बहुत चीजें मैंने देखी। मैं हैरान होती थी देख देख, क्योंकि मेरे लिए दुनिया, जो बच्चे पलते हैं ना अपने उसमें इन लॉज के अंदर, आई एम सॉरी, चाचों के साथ, बच्चों के साथ, और यानी कि जॉइंट फैमिली में जो पलते हैं बच्चे, वो डिफरेंट होते हैं, वो जरा तेज होते हैं। हम लोगों का सेपरेट अपना घर था। हमारे दादा वगैरह जो थे वो भी बहुत दुआ गो थे, जब भी हमने इकट्ठा होना तो दुआई करनी होती थी। और हमारे फैमिली में इस टाइप की चीजें नहीं थी, जो दुनियावी चीजें होती हैं बहुत कम थी। तो हम लोगों ने अपनी, हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन हम लोग जब आए उसमें, मेरी शादी हुई तो मेरे लिए एक नई दुनिया थी। बहुत मुश्किल मुझे टाइम लगा था वो, तकरीबन 6 साल मैं लोगों को देखती हूँ। अपनी मदर इन लॉ को चेक करती थी कि कैसे वो इन लोगों के साथ डील करती हैं। मैं फिर डील करना मैंने सीखा अपनी, मैंने जिंदगी समझे तो मैंने अपनी माँ से दुआ करना सीखी है, और मदर इन लॉ से मैंने ना अपनी जिंदगी जीना सीखी है। तो मैं चुप करके ना खामोशी से बैठी उनको देखती थी कि कैसे वो चीज़ों को डील करती है, कैसे बातचीत करती हैं। तो फिर मैं उन चीज़ों को अपने, और फिर बहुत देर के बाद, यानी कि 14 ईयर्स, हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे मासूम बंदे थे, बहुत अच्छे थे, ही वॉज इवन बेटर देन मी। और मैं तो फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया था, उन्होंने फिर भी नहीं था चेंज किया, उन्होंने नहीं था चेंज। वो खुदावंद का शुक्र है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मुश्किल तरीन हालात में भी खुदावंद के होके रहें, और खुदावंद के लिए मतलब अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्या था बात है जो पीछे रह गई। हाँ, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि फिर मैंने देखा कि मतलब लाइक लोग पुरानी पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के ना रखें, पीछे भूल जाएं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे अब रोज भाई और सिस्टर भी दुआ करती हैं कि सिस्टर ने बहुत काम किया, और मैं खुद भी आपको बताती हूँ कि मैंने पाकिस्तान के तकरीबन 32 शहरों में काम किया। अब ये नहीं कि मैं बैठ जाऊँ, लो जी कर लिया काम, ऐसा नहीं है। हमने हर रोज उन चीजों को भी भूल जाना कि मैंने वो काम किया हुआ है। अब मुझे नई दौड़ दौड़नी है। मैंने खुदावन से कहना कि खुदावन और दे मुझे, और मेरे रास्ते खोला। आप लोगों के लिए भी मैं कहना चाह रही हूँ कि सब लोगों को फिर वो पीछे की चीजें को भूल के ना, तो आगे की तरफ और ज्यादा अपनी जमा करें। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। जब आपने खुदावन यीशु मसीह के सामने जाना, तो आपने खुदावन को कहना कि खुदावन मैंने ये किया है ना। ऊपर हमने एक इस टाइप की आयत भी पढ़ी थी, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन थी इस टाइप की आयत कि हम खुदावन के सामने रख सकें कि हमने ये किया है, ठीक है। तो वो फिर वो ये है, मतलब दोनों मतलब ले सकते हैं। जी सिस्टर जी आगे करें। जी पासी से ना एक मेरे बात ज़हन में ये भी आती है कि इसमें मतलब कि उन्होंने कहा है कि पीछे कि जो चीजें पीछे रह गई। मैंने अक्सर ये देखा है जो लोग मतलब कि क्रिश्चियनिटी में आते हैं, मुस्लिम से कन्वर्ट होके और हिंदू सिख वगैरह से, वो अक्सर एक तो अपने नाम भी नहीं चेंज करते, दूसरा वो फिर भी मतलब कि कुछ ना कुछ लफ्ज जरूर बोल लेते हैं बीच में, या रस्में नहीं छोड़ते वहां की ना।
सही। हाँ बिल्कुल, जब आप बाइबल में लिखा हुआ है कि अब मैं मसीह में नया मखलूक हूँ, नए मखलूक बन जाते हैं हम हमें छोड़नी चाहिए पुरानी चीजें। जब मसीह में है तो हमने छोड़नी है पुरानी चीजें। और लिखा है कि मैं वो पुरानी सब जाती रही है, अब देखो सब नहीं होगी, होनी चाहिए तो यही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मिरेकल नहीं होता, इस तरह नहीं होता रातों रात मिरेकल होता है, जिंदगी बदलती है, आपका ईमान चेंज हो जाता है, आप जाते हो अपने फैमिलीज को छोड़ देते हो, आप वहाँ की जायदादों को छोड़ देते हो, सब कुछ करते हैं मुस्लिम लोग जो कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये आप याद रखें कि इंसानियत को पौलुस रसूल ने कहा है कि अपनी इंसानियत को रोज बरोज नया करते रहो। ये रोज का एक प्रोसेस है, रोज का प्रोसेस है। एकदम से मिरेकल होता है और खुदा आपकी जिंदगी को चलता है, आपका एक आप पलट जाते हो एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन रोज हमारे पास फिर भी टारगेट्स होते हैं। जैसे अब मैं I'm 58 ईयर्स, तो अभी भी मैं सीख रही हूँ। ये नहीं है कि हमारा ये तो इतना जो समंदर से भी गहरा है हमारा खुदावंद का कलाम, तो इसमें तो बहुत गुंजाइश है आपको सीखने की रोज की रोज। तो इसलिए आप रोज सीख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो कोई कन्वर्ट होके आए तो बस आज ही हो गया जी। वो ठीक है, अच्छी बात है कि जितना ज्यादा अपने आप को बदलें उतना अच्छा है, जितना ज्यादा। लेकिन ये आते आते चेंज आता है, पूरी उम्र खुदा सिखाता है। जी मैं आऊंगी आगे वर्ष नंबर 14। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं मतलब कि जीसस ही की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, और जीसस ही यानी कि एक ऐसा निशान है कि जिनके वसीले से खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो जीसस पर ईमान लाएंगे वो खुदा के पास जा सकते हैं, खुदा को देख सकते हैं। और जो जीसस पे बिलीव नहीं रखता, खुदा मतलब कि उसे नहीं कबूल करेगा। जी हाँ जी, वर्स नंबर 15। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। तो इसमें पौलुस रसूल कह रहे हैं कि बस हम में से जितने कामिल हैं, जितने मुकम्मल हैं, यही ख्याल रखें। कामिल भी यही मुकम्मल ही है ना पास्टर साहबा? जी, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उसको भी तुम पर जाहिर कर देगा। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज पास्टर साहबा। एक मिनट मुझे दे जरा एक मिनट। अच्छा जी, हाँ जी, लिखा हुआ है वर्स नंबर 14 है कि 15 है? 15 है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें। कामिल, अब जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ही खुदावंद है जो कि परफेक्ट है, रास्तबाजी से। कामिल का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से हम खुदावंद का काम कर रहे थे वो लोग, ठीक है ना। उन्होंने कहा यही ख्याल रखे, अगर तुम किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। ऐसा होता है कि देखिए, जैसे हम लोगों की भी आपस में कभी हो जाती है। मैंने अगर एक बात कही तो हर एक का जरूरी नहीं कि वही ख्याल हो, दूसरे लोगों का कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि फिर ये होगा कि बाज़ औक़ात आपको पता है कि मैंने कलाम सुना है लोगों से, कई दफ़ा मैं कलाम सुनती हूँ तो मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं उनके साथ होता। तो मैं पाखरू को कहती हूँ कि पाखरू तू मुझे बता, क्योंकि मैं चले आपको बता ही देती हूँ। मेरी मामू के मामू अब तो उनकी खुदावंद में वो सो गए हैं, लेकिन एक वक्त था कि वो जब खुद हयात थे तो बहुत अच्छे पास्टर थे और बड़ी खुदावंद उनकी वसीले से असल में बहुत बड़े बड़े काम करता था, ठीक है ना। तो ये कि एक दफ़ा उनकी चर्च में मैं कलाम सुनने के लिए गई, और जब मैं कलाम सुन रही थी तो मैंने देखा कि कलाम ने बल्कि मुझे बोझल कर दिया। और कलाम क्या था कि क्रिसमस ना मनाओ, और ये जो खुदावंद की क़यामत अल मसीह जो, हालांकि मेरे मामू वाज वेरी गुड पास्टर। उनके चर्च में एक पास्टर आए थे जो कि उनके थोड़े रिश्तेदार ही थे, मगर उसने स्टडी की हुई थी, नंबर्स की स्टडी की हुई थी, और ये जो मसीहानिक ज्यू था। तो वो आ गए और उन्होंने जो कलाम सुनाया था, मेरे मामू मतलब एक कितना ख़ास बंदा जो कि रूहानी सूरमा थे वो, क्योंकि पूरे लाहौर में अगर बदरूहें
मतलब नहीं निकलती थी ना कुछ पास्टरों से, तो वो मेरे मामू को बुलाते थे, लास्ट होता था एक बदरू, बल्कि आंखों से उठाती थी, पास्टरों को उठाती ऐसे करके ना, एक बंदे के अंदर थी, यूं उठाती थी और फेंक देती थी, ऐसे आंखों से उठा के फेंकती थी। और जब मेरे मामू को बुलाया गया तो उन्होंने दूर से इसको कहा कि चल निकल, तो निकल गई थी। तो मामू के बहुत ज़्यादा मतलब इन खुदावंद ने ये बरकत दी हुई थी, लेकिन वो भी उस तालीम के अंदर हो गए थे, उन्होंने उसकी तालीम को मान लिया। तो मैं बहुत बोझल हो गई थी। कलाम सुन के ना तो आपको खुशी होती है, आप फ्रेश होते हो। लेकिन मैंने फिर जो कलाम उन्होंने सुनाया था ना कि यीशु की पैदाइश को नहीं मनाना चाहिए और यीशु के जी उठने को नहीं मनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं ये खुदावन से पूछूंगी। तो खुदावन ने फिर मुझे बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया कि खुदावन का 39, मैं जिस दिन क्रिसमस आने वाला था असल में, इस वजह से वो कलाम सुना रहे थे, वो जो शख्स था उनके चर्च में आया। तो जब मैंने खुदावंद के आगे रख दिया, मैं कहा खुदावंद मुझे आप बताओ, मैं तो बीमार हो गई हूँ, कलाम सुन के कौन बीमार होता है, मैं बीमार हो गई थी। तो मैंने कहा खुदावंद मुझे आप बताएं कि क्या करना चाहिए। फिर मुझे खुदावंद ने क्रिसमस जो था वो बिल्कुल नज़दीक था, और जब मैंने देखा कि क्रिसमस पे नवाज शरीफ ने, तारिक सी कैसर ने और काफ़ी लोग थे, उन्होंने 39 कंट्रीज़ में तब ब्रॉडकास्ट हो रहा था पैगाम क्रिसमस का, और उन्होंने यीशु के लिए इतने अच्छे अल्फाज बोले। उन्होंने मतलब कहा कि वो सलामती का शहजादा है, और हमें भी उसके पीछे, यहाँ तक नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि हमें उनको देखना चाहिए, हमें उनकी अमन का शहजादा है वो, तो उनका पीछे हमें भी जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। और ख़ूबसूरत रूहानी अल्फाज खुदावंद ने उनके मुंह से निकलवाए। तो मुझे खुदावंद ने मेरे दिल में फिर डाला कि ये जो टाइम है, इसमें कितने मुल्कों में मेरे नाम को जलाल मिल रहा है। तो फिर खुदावंद का शुक्र है कि मैंने कभी भी ये फ़ैसला नहीं किया कि मैं ये ना मनाऊँ क्रिसमस और क्या मसीह जो है ना उसको ना मनाऊँ, क्योंकि ये तो आम सी बात है, नॉर्मल बात है कि हमारा मसीहा पैदा हुआ है, हम उसका पूरे लोग जो हैं ज़मीन के लोग मिल के खुदावंद की पैदाइश की एक दिन मनाते हैं। तो अब्लीस जो है वो इसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये बात है कि हम लोगों ने जब हम खुदा से पूछते हैं तो खुदावंद हम पे जाहिर कर देता है, ये मतलब है। ठीक है सच्ची जी? हाँ जी पास्टर साहबा, गॉड ब्लेस यू। मेरी पूरी होगी वर्सेस, और अब मेरे हस्बैंड 16 वर्सेस जी जी। फिलिपियों उसका तीसरा बाब उसकी 16 आयत से। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम मजहब में जहां तक पहुंचे हैं उसी के मुताबिक, जो कुछ कलाम हमें कहा गया है उसी के मुताबिक हमने चलना है। वेरी सिंपल। 70 ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो, इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जो लोग भी उनकी तरह मसीह में चलते हैं उनकी मानद बनो, उनके लोगों को पहचानो कि वो कौन है, और उनके पीछे उनका नमूना, उनकी एक रोल मॉडल की तरह उन्हें पहचानो और उनके साथ चलते रहें। क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। तो यहाँ पे वो बड़े अफसोस से कह रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपने चाल चलन से, कि अपने जो दुनियावी काम हैं, जो उनके रहने से रहन सहन चाल चलन है, उससे वो जो अपनी जिस तरह वो जिंदगी गुजार रहे हैं वो डेली वो मसीह की सलीब के दुश्मन है। वो सलीब के दुश्मन इस तरह है कि जो कुछ जीसस ने कहा है वो उस पर अमल नहीं करते, तो हम ऑटोमेटिकली सलीब के दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए हमें एक जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी पौलुस ने, तो उनकी तरह हमें चलना है
اور یا اور لوگ جو کلام پہ چلتے ہیں، مسیح کی باتوں پہ چلتے ہیں، تو ہم نے ایسے لوگوں کی طرح نہیں بننا جو صلیب کے دشمن، بس ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، ان کا انجام جو ہے وہ بلا شبہ ہلاکت ہے، ہمیشہ کی موت. ان کا خدا پیٹ ہے، وہ ہمیشہ اپنے کھانے پہ، یعنی کہ پیٹ کا مطلب لالچ بھی ہو سکتا ہے، صرف اپنے مقصد کے لیے زندہ رہنا. وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں، جن باتوں پہ ان کو شرم کرنی چاہیے ایز اے مسیحی، ایز اے کرسچن، وہ ان پہ فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. وہ ہم ہر وقت دنیاوی چیزوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، انہی کا خیال کرتے ہیں اور انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہلاکت ہے. ہاں جی، جبکہ جو مسیح میں چلتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. بس کہ اگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا وطن ہے ہی آسمان اور ہم خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں، تو وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. ہلیلویا. جب وہ جیسس آئیں گے جو اپنی قوت کے ان کے پاس بے انتہا اختیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہر قادر مطلق ہیں، تو وہ سب چیزوں کو اپنے تابع کریں گے. اور جو ہماری بس حالی ہے، جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں اکثر دیکھا ہے، جو خداوند کے جو دولت کی طرف نہیں جاتے، خداوند کی کرتے ہیں، ان پہ کافی آزمائشیں آتی ہیں. بھوکے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں کہ ان کا جو ہوتا ہے ان کی نظر خداوند پہ ہوتی ہے. تو ان کے لیے تو خداوند نے کہا کہ ان کی خدا جیسس اتنے ان کے پاس ہے تاثیر، طاقت یا حاکمیت کہ وہ سب کچھ بدل سکتے ہیں اور ہمارے اس بدن کو جلالی صورت بنائیں گے وہ. تو ہمیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دنیا واقعی تو 2 دن کی ہے، یہ ایک امتحان ہے. اگر ہم نے اس میں اچھے نمبر لیے، پاس ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ایور لاسٹنگ لائف ہے، جہاں آنسو نہیں ہے، جہاں مردے نہیں ہیں، جو آج ہم نے گیت بھی گائے کہ وہاں مردے نہیں ہیں کوئی. وہ ایک اور ہی دنیا ہے اور اس میں کوئی غم نہیں، کہ کوئی آنسو نہیں، کوئی سسکیاں نہیں، کوئی آہیں نہیں، بیماری نہیں. وہاں پہ اتنی خوبصورت زندگی ہوگی کہ میرا نکل کے ہم کوئی تصور بھی کر سکتے ہیں. پرفیکٹ لائف کا جو ہمارے جیسس نے ہمارے لیے اپنے کہنے کے مطابق تیار کر رکھے ہیں، کر چکے. تو گاڈ بلیس یو آل. یہ میری آمین آمین. اور یہ دیکھیں جو ورس نمبر 19 میں لکھا ہے نا، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا نا کہ فیس بک کے اوپر آپ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں، بس پیسے ان کو ملیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو پھر ہنستے ہیں جب ان کو پیسے مل جاتے ہیں، ہنستے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک پاسٹر تھے تو ان کو وہ بڑے اچھی خدمت کرتے تھے، لیکن ان کو تو کوئی نہیں تھا دیتا. تو ان کے بھائی کو ان کے بھائی نے اپنے بھائی کی چرچ کی تصویریں لگائی اور ان کو پیسے آنے شروع کر دیے، اور پھر ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، جو ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ شرم کی باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند کا کام ہے. خداوند کے کام میں لوگ پیسے کے پیچھے مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب آپ دے دیتے ہیں تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں پھر. تو یہ اس طرح خداوند نے کہا کہ وہ فخر کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی چیز ہے، پیسہ جمع کرنا دنیا کی چیز ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. جی سسٹر روبی ہمارے ساتھ ہیں، تو دعا کریں کلام مقدس کے لیے تاکہ پھر ہم ختم کرتے ہیں آج. جی گاڈ بلیس یو آل. ہم ساری عبادت کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا ان کے زندگی بخش کلام کے لیے بھی، ساری حمد و ثنا کے لیے بھی. یس تھینک یو جیسس.
कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप खुदा लश्करों के खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन आपके पाक को मेहनत होते हैं इस वजह क्योंकि आपको शुक्रगुजारी पसंद है खुदावन आसमानी बाप। हम खुदा शुक्रगुजारी करते हैं सारी इबादत के लिए। रूबी आप रूबी बंद करो बेटा, ये आवाज़ बंद कर दो। अब कोई और दुआ करता है, आपको शोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बंद करो। क्या वजह है? हवा में जैसे आप खड़ी हैं, हवा में तो नहीं है। चले आप करें, आप करें, आप करें, आप हुआ काम बिल्कुल ठीक। हाँ आप ठीक है बिल्कुल जी जी करिए बेटा। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद आपके हजूर आते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद, आपको खुदावंद सजदा करते हैं क्योंकि आप इस लायक हैं आपको मुबारक कहा जाए खुदावंद, और आपके नाम की तमजीद की जाए, आपकी शुक्रगुजारी की जाए। आसमानी बाप हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हमें इस लायक समझने के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। लोग खुदावंद इस वक्त दुनियावी कामों में लगे हैं, लेकिन खुदावंद हम खुदावंद आपके चुने हुए लोग हैं जो आपके हुजूर चुके हैं खुदावंद। हम खुदावंद आपने हमें इस लायक समझा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि हमने आपके कलाम को पढ़ा, आपकी तमजीद की खुदावंद, आपके खुदावंद के कलाम को सीखा। यस राजा, इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। जितने लोगों ने फेसबुक पर खुदावंद आपके कलाम को सुना है उन सब के लिए भी खुदावंद आपकी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। और सारे ग्रुप के लिए खुदावंद, ब्रीड सल्वेशन ग्रुप के लिए भी खुदावंद, जितने मेंबर हैं उन सब की फैमिलीज पे, उन सब के लिए खुदावंद आपकी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। एक एक के साथ खुदावंद एक एक को खुदावंद नाम बनाम छे और बहुत बरकत दीजिए यीशु राजा। खुदावंद जितनों ने खुदावंद आपकी हमदो सना की है खुदावंद उन सबको बहुत बरकत दीजिए यीशु राजा। इसी तरह मैं आपकी खात्मा के लिए भी दुआ करती हूँ खुदावंद, अपनी खात्मा को आपकी शोला की मानंद इस्तेमाल कीजिए यीशु राजा, ताकि खुदावंद ऐसे ही आपके कलाम को दलेरी के साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाती रहें यीशु राजा। और अपनी खात्मा के जिस्म के अंदर जो भी कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी को जोर में बदल दीजिए यीशु राजा। खुदावंद आप अपना शिफा वाला हाथ हमेशा अपनी बच्ची के ऊपर रखिए यीशु राजा, ताकि आपके नाम की ऐसे ही शुक्रगुजारी करती रहे आसमानी बाप। उनके घराने पे आपकी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं जुनैरा के लिए खुदावंद उसके टेस्ट स्टार्ट हुए हैं यीशु राजा, आपकी खास मदद चाहते हैं उसके लिए खुदावंद। उसकी स्टडी में उसकी बड़ी मदद कीजिए खुदावंद, उसके ज़हन को टच कीजिए यीशु राजा, ताकि जो कुछ वो पढ़े खुदावंद उसको खुदावंद ज़हन नशीन हो जाए अच्छे से खुदावंद। और खुदावंद आप उसकी खुदावंद मदद कीजिए यीशु राजा, हर वक्त हर घड़ी खुदावंद अपनी बच्ची की मदद कीजिए आसमानी बाप। और खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल देती रहे खुदावंद। सलीम के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, सलीम के भी साथ हो, से अपनी हिफाजत में रखिए खुदावंद। और खुदावंद वो हमेशा खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल देता रहे, आपके नाम को मुबारक कहता रहे खुदावंद। और खुदावंद सबके साथ, और सिस्टर साइमा के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद। आज वो खुदावंद किसी वजह से मीटिंग में नहीं आ सकी हैं खुदावंद, लेकिन खुदावंद आपका जलाल उनकी जिंदगी में चमके खुदावंद, आपका जलाल खुदावंद हमेशा उनके साथ रहे खुदावंद, आपका हाथ हमेशा उनके साथ रहे खुदावंद। उनकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं खुदावंद, सारी खुदावंद आपके कादिर नाम के वसीला से जाती रहे खुदावंद। आप हमारी फिक्र करते हैं खुदावंद, आपने कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र खुदावंद। जितने भी लोग परेशान हैं खुदावंद, कोई जॉब की वजह से परेशान है खुदावंद, कोई बीमारी की वजह से परेशान है, कोई भी परेशानी है खुदावंद, तो आप खुदावंद यीशु राजा आप सबकी परेशानियों को खत्म करें खुदावंद। आप खुदावंद उनके जिंदगियों को ब्लेस कीजिए यीशु राजा। मैं एक जान को खुदावंद आपके आगे रखती हूँ, सबकी परेशानियां आपके नाम से जाती रहें खुदावंद, आमीन। सबके साथ हो खुदावंद, सबको बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांग लेती हूँ आपके मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। जी भाई नदीम, हमारे बाप की दुआ करें और फिर बरकत के कलमात से रुखसत होते हैं।
गॉड ब्लेस यू ऑल। पहला दावर 1:4 बाब उसकी 10 आयत से, ऐ इसराइल के खुदा तुम मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तुम निकतों को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तुम मुझे बत्ती से बचा, तुम का बाइस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रखा है, मैं खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस, डिवाइन मिनिस्ट्री, और जितने भी फेसबुक पर हमारे सब व्यूअर्स हैं उन पे, फैमिली स्पिरिट के फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक थैंक यू यू जीसस। जीसस। चलने दुआएं रुबानी आपकी सिखाई अदा करेंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी। आमीन आमीन आमीन। अब से लेकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ, और उनके भी साथ रहे जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के खून से नहीं खरीदे गए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मेरू सल्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस इज माइन मिनिस्ट्रीज के साथ, खुदावंद यीशु मसीह का फजल फेसबुक फैमिली के साथ, सबके साथ एक एक करके हर एक को बरकत, उनके घरों को, घरानों को, सबको बरकत यीशु मसीह के नाम से मिले। खुदावंद हमारी कंट्रीज़ को, हमारे जितने प्यारे यीशु राजा जी, खुदावंद हमारे शहर हैं, सबको आपके पाक फजल के अंदर देते हैं। खुदावंद हमारे बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, उनके घरों को, घरानों को, खुदावंद यीशु राजा जी आपके पाक फजल के अंदर सबको हम देते हैं। और मेरे खुदावंद यीशु राजा आपका पाक फजल कैदियों के ऊपर हो, जो कि खास तौर पे यीशु के नाम के लिए कैद हैं। और खुदावंद आपका पाक फजल जितने प्यारे यीशु राजा जी बीमार हैं, परेशान हैं, कमज़ोर हैं, सब के ऊपर आपका पाक फजल, जो आपके कलाम को नहीं जानते, आपके नाम को नहीं जानते, उनके ऊपर फजल। और खुदावन जो कि आपके नाम को दूसरी जगहों पे लेके जाते हैं, फैलाते हैं, उनके ऊपर आपका पाक फजल। और खुदावंद आपका पाक फजल यरूशलेम की सलामती के लिए, आपका पाक फजल सारे बाशिंदों के लिए, इसराइल के, उनको बरकत यीशु जी देते हैं, ताकि हमें भी बरकत मिले। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।